નમસ્તે બાળકો, મજામાં ને? તો આજે આપણે ધોરણ 5માં હિન્દી વિષયના પાઠ 9 વિશે અભ્યાસ કરીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અગાઉ પાઠ 9 કૈસા શોનો ભાગ 1માં પાઠ વિશે શબ્દાર્થ અને મુહાવરા અને પાઠની સમજૂતી એ વિશે ભણી ગયા. હવે પેજ નંબર 64 પર અભ્યાસ વિશે જોઈએ. તો બધા વિદ્યાર્થીઓ પોતાના પુસ્તકના પેજ નંબર 64 પર ધ્યાન આપશે અને પુસ્તક ખોલીને તેમાં જોશે. તો શું છે? અભ્યાસ. તો હવે આ ભાગ 2માં આપણે જોઈએ પાઠ 9નો અભ્યાસ. नंबर 1, आप अपने घर में पकाई जाने वाली सब्जियों की सूची बनाइए. तो શું કહ્યું છે કે તમે તમારા ઘરમાં જે પકાઈ એટલે કે જે સબ્જીઓ બનાવો છો એની સૂચિ તમારે તૈયાર કરવાની છે. કે કોઈ પણ શાકભાજી તમારે ઘરમાં વપરાય છે બનાવવામાં, એની તમારે એક યાદી નોટબુકમાં બનાવવાની છે. सूची में से अपनी मनपसंद सब्जियां बताइए और क्यों पसंद है उसका कारण दीजिए. શું કહ્યું છે? જે સૂચિમાં તમે બનાવી શાકભાજી એમાં તમે અથવા તો તમને કઈ મનપસંદ સબ્જી એટલે કે તમને કઈ શાકભાજી ભાવે છે એ વિશે તમારે બતાવવાનું છે. ઉસકા કારણ દીજીએ એટલે કે તમને ભાવતી વસ્તુ, કઈ વસ્તુ ભાવે છે અને શા માટે એ વસ્તુ તમને ભાવે છે એનું કારણ તમારે બાજુમાં લખવાનું છે. નંબર 3, ભિન્ન શબ્દ પર ગોલા કીજીએ. શું છે? જુદા પડતા શબ્દો પર ગોળ કરવાનું છે. जैसे पालक, गाजर, सेब, लौकी. तो पालक, गाजर, सेब और लौकी એટલે પાલક, ગાજર, સેબ, લૌકી એ બધું શું થયું? શાકભાજી. સેબ એટલે સફરજન, એ શું થયું? ફળ. આ 3 શાકભાજી અને આ એક ફળ અલગ પડ્યું, એના પર શું કરવાનું? ગોળ. એ રીતના બીજા 4 વાક્યોમાં પણ જે અલગ પડતી વસ્તુ હોય એના પર આપણે ગોળ કરવાનું છે. નંબર 1, કકડી, ગાજર, બંધ ગોભી और केला. तो ककड़ी, गाजर, बंद गोभी શું છે? શાકભાજી. કેલા એ ફળ, તો એના પર ગોળ કરીશું. 2, પપીતા, મૂલી, આમ, અનાર. તો પપીતા, આમ, અનાર એ શું છે? ફળ, અને મૂલી એટલે કે મૂળો શાકભાજી છે, તો એના પર ગોળ કરીશું. નંબર 3, કનેર, ધનિયા, ગુલાબ और ચમેલી. તો કનેર, ગુલાબ और ચમેલી શું છે? ફૂલો, અને ધનિયા એ શાકભાજી છે, એના પર ગોળ કરવાનું. 4, मिर्च, अदरक, फूलगोभी और लहसुन. तो मिर्च, अदरक और लहसुन એ શું થયા? રસોઈના મસાલા, અને ફૂલગોભી એ શાકભાજી, તો એ અલગ પડશે, તો એના પર ગોળ કરી દેવાનું. પ્રશ્ન નંબર 4 છે, પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ. તો તમારે આ જે અહીંયા પ્રશ્નો આપેલા છે એને જવાબ હિન્દીમાં તમારે લખવાના છે. હરે રંગ કી સબ્જીયા કે નામ બતાઈએ. તો શું છે? લીલા રંગની શાકભાજીનું નામ બતાવો. એટલે કે લીલા રંગની શાકભાજીઓ કઈ થશે? करेला, पालक, बंद गोभी, भिंडी, ककड़ी, मेथी की भाजी आदि એટલે કે વગેરે. નંબર 2, कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है. तो જે કાચું ટામેટું હોય એનો રંગ કેવો હોય? તો હરા. કેવો હોય? લીલો. 3, कौन कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है. તો કઈ કઈ શાકભાજીનો સ્વાદ કડવો હોય છે? જવાબ છે કકોડા, કરેલા और मेथी की भाजी. તો કકોડા એટલે કે કકોડા, કારેલું અને મેથીની ભાજીનો સ્વાદ કડવો હોય છે. 4, प्रस्तुत इकाई में कौन सी सब्जियां के नाम नहीं आए हैं. तो प्रस्तुत इकाई तो विद्यार्थी मित्रों इकाई એટલે એકમ. प्रस्तुत इकाईમાં कौन सी सब्जियां એટલે કે કઈ શાકભાજીના નામ નથી આવ્યા? તો ધ્યાન આપો. કદ્દુ, ककोड़ा, तुरई और पालक. શું છે? કદ્દુ, કકોડા, તુરઈ એટલે કે પાલક. આ બધી જે શાકભાજી છે એ પ્રસ્તુત ઇકાઈમાં એટલે કે એકમમાં આવેલી નથી. નંબર 5, हलवा बनाने में गाजर या लौकी के अलावा कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है. તો હલવા એટલે કે હલવો બનાવવા માટે ગાજર और દૂધી સિવાય બીજી કઈ વસ્તુઓની જરૂર પડે છે? तो चीनी, पानी, घी, इलायची,
काजू बदाम और पिस्ता ये बधी वस्तुओं जरूर पड़े छे। नंबर 6, ऐसे फल बताइए जिसकी सब्जी भी बनाई जाती है। तो एवा फल बताओ कि जेनी शाकभाजी पण बने छे। तो आम केला अंगूर और अमरूद ए बधा फळो छे जेनी शाकभाजी पण आपणे बनावीए छीए। हवे प्रश्न नंबर 5 में छे विद्यार्थी मित्रों, अहीं ध्यानथी जुओ। अहीं एक चित्र आपेलुं छे, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। तो आ एक शानु चित्र छे, सब्जी मंडी एटले के बजारनुं चित्र छे। एमां जो लारीमां शाकभाजी छे, अमुक वेपारीओ नीचे बेठेला छे अने फळोनी दुकानो आपेली छे अने बाळको महिलाओ बधा फळो शाकभाजी खरीदता होय छे। तो आनुं विस्तारथी वर्णन तमे स्वाध्याय पोथीमां बतावीशुं। हवे पेज नंबर 65। प्रश्न नंबर 6, चित्रों के आधार पर कहानी कथन कीजिए। तो शुं छे, आज चित्रों आपेला छे ध्यानथी जुओ। नंबर 1, 2, 3 અને 4 एमां पण कहानी એટલે કે वार्ता કહેવાની છે। એટલે આ એક શાનું ઝાડ છે, બરગદનું, અને બાજુમાં પણ છે હાથી। તો આ એક વાર્તા બને છે એ પણ તમને સ્વપોથીમાં વિસ્તારથી સમજાવીશું। હવે પેજ નંબર 66। तो पेज नंबर 66 में प्रश्न नंबर 7 आपेलो छे। वे एमां जुओ, दिए गए चित्रों के बीच के भेद बताइए हुए वर्णन कीजिए। तो आ पण तमने स्वाध्याय पोथीमां बतावीशुं। अहींया जे चित्रों आपेला छे मित्रों ए तमने स्वाध्याय पोथीमां एनो विस्तारथी जवाब मळी जशे। એટલે કે स्वाध्याय पोथीमां जे विडियो बताववामां आवशे એટલે એ બધાના જવાબ અથવા વિસ્તૃત માહિતી આપવામાં આવશે। તો તમને અહીંયા જો આમાં ભેદ એટલે કે તપાસ શોધવાનો છે। તો જુવાય બળદ છે બરાબર, અને આ ખેડૂત, તો આમાં છે ના બરાબર। તો આમાં શું છે, એ ખેડૂતે અહીંયા શું વેચે છે, શાકભાજી। તો અહીંયા મોર છે બરાબર, કળા કરતો મોર। તો આ બાજુ ચિત્રમાં બાજુમાં ઊભેલો મોર દેખાય છે। અહીંયા એક બકરી છે बराबर, बकरी क्या है, अहींया मोरनी सामे એટલે કે जो एक छोकरो बकरीना पाछळ ऊभो छे बराबर, अने एनी पाछळ पण एक बीजो छोकरो छे। तो अहींया बकरी वचमां छे, तो अहींया बीजा चित्रमां बकरी बाजू पर छे। जे शाकना जे ढगलो कर्यो छे એટલે કે શાકભાજી છે એની બાજુમાં બકરી ઊભેલી છે, અને જે છોકરો પહેલા ચિત્રમાં પાછળ દેખાય છે ए बीजा चित्र में शाकभाजी खरीदे छे बराबर ने। ध्यानथी जोजो मित्रों, अहींया जुओ, अहींया एक खेडूत शुं छे, आ जे वावेल खेतर में शुं करे छे, शाकभाजी लई रह्युं छे बराबर, अथवा तो कापी रह्युं छे, अने आ छोकरो शाकभाजी खरीदे छे। અને અહીંયા ખેતર છે, ખેડૂત ખેતરમાં શું કરે છે, બળદોને લઈને જાય છે। અને આ ચિત્રમાં બે છોકરા છે અને આમાં એક છે અને બે ખેડૂત છે। તો આમાં એક ખેડૂત છે। તો આ નંબર 1 અને નંબર 2 ચિત્રમાં તમારે ભેદ બતાવવાનો છે। તો આમાં એક ઝાડ છે ને આમાં ઝાડ નથી। स्वाध्याय प्रश्न 1, बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? तो बिरजू काका क्या आराम कर रहा था? तो पेड़ की छाया में। तो बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। 2, कचुम्बर में कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है? तो विद्यार्थी मित्रों, कचुम्बर बनावीए तेमां कई कई शाकभाजीनो उपयोग थाय छे? तो जवाब आवशे बंधगोभी, मूली, गाजर, बीट, प्याज, ककड़ी, मिर्च और टमाटर। तो बंधगोभी एटले के शुं थाय, कोबीज, मूली एटले मूळो, गाजर, बीट, प्याज एटले डુંગળી, ककड़ी एटले काकड़ी, मिर्च एटले मरचुं, टमाटर एटले टामेटुं। आ बधी शाकभाजीओना कचुम्बरमां उपयोग थाय छे। नंबर 3, आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती है?
तो बटाकाथी बीजी खावानी कई वस्तु बने छे? तो जवाब छे चाट, चिप्स, टिकिया जैसी खाने की चीज़ें बनती है। तो बटाकाथी चाट, चिप्स, टिकिया वगैरह बने छे। 4 मसालों से रसोई में क्या होता है? तो मसाला से रसोई में शू थाय? स्वाद और सुगंध मिलते हैं। तो मसालों से रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। 5 बैगन ने सबको क्या सलाह दी? बैगन एटले के રીંગણ। तो રીંગણે બધાને શું સલાહ આપી? तो जवाब आपसे मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। बैंगन ने सबको कहा मिलजुल कर रहने में ही हम सबकी भलाई है। नंबर 6 बच्चों को कौन सी सब्जियां बहुत पसंद होती है? तो बाळकोने कई वस्तु वधारे अथवा कई शाकभाजी वधारे पसंद होय छे? तो आलू, गाजर, शकरकंद, टमाटर। बराबर। बाळकोने बटाका, गाजर, शक्करियों ने टामेटा जेवी शाकभाजी वधारे पसंद होय छे। नंबर 7 जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम बताइए। जे जमीननी अंदर थाय एने शुं कहेवाय मित्रों? कंदमूळ कहेवाय। जे जमीननी अंदर थाय ए शाकभाजी बताओ। आलू, गाजर, प्याज, मूली, रताळू, लसूण, शकरकंद, जमीकंद आ बधी वस्तु अथवा तो आ बधी शाकभाजी क्या थाय? जमीननी अंदर, जेने आपणे शुं कहीए छीए? कंदमूळ। नंबर 8 बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती है? एटले के वेलाओं पर कई कई शाकभाजी होय छे? जवाब छे ककड़ी, करेला, कुम्हड़ा, तोरई, लौकी, कुंदरू, परवल आदि सब्जियां बेलों पर होती है। एटले के काकड़ी, कारेला, तोरी एटले के तोरियों, दूधी जैसी शाकभाजी अने परवल ए बधा शेना पर थाय? वेलाओं पर। तो हवे पेज नंबर 67 अहींया जो मित्रों अहींया पण एक चित्र आपेलू छे। तो प्रश्न नंबर 2 नीचे दी गई सब्जियां के रंग, रूप, आकार या स्वाद के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो जो नीचे आपे छे बैगन, टमाटर, करेला, लौकी और गाजर। आज 5 शाकभाजी आपेल छे, तमारे बधा विषे 2 वाक्यों लखवाना छे। प्रश्न नंबर 3 चित्र के आधार पर लेखन कीजिए। तो आ चित्र आपेलू छे जे आपणे आगळ जोई गया। शानुं छे? सब्जी मंडी एटले के बजारनुं चित्र आपेलू छे। एना पर तमारे लेखन कार्य करवानुं छे। एना उपर 5-10 वाक्यों लखवाना छे। प्रश्न नंबर 4 नीचे दिए गए वाक्यों की मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। जे 5 वाक्यों आपेला छे एने गुजराती में अनुवाद करवानो छे। तो नंबर 1 सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। तो बधी शाकभाजी मारा वगर अधूरी छे। 2 गाजर से हलवा बनता है। तो गाजर थी हलवो बने छे। मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। मसाला रसोई ने स्वाद और सुगंध आपे छे। करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। तो करेला आरोग्य माटे फायदाकारक छे। 5 बीजू चाचा सो गए, बीजू काका सोई गया। प्रश्न नंबर 5 देखिए पता कीजिए और लिखिए। शू छे? जुओ अने लखो। जब तुम इस इकाई को पढ़ रहे हो तो उस समय खेतों में कौन कौन सी सब्जियां होगी? शू कहे छे? ज्यारे तमे इकाई एटले के आ एकम भणी रह्या छो त्यारे खेतर में कई कई शाकभाजी हशे? इनमें कौन कौन सी सब्जी होगी? तो एमां कई कई शाकभाजी हशे? कौन कौन सी सब्जियां होगी एटले के ए वखते खेतर में कई सब्जी एटले कई शाकभाजी हशे? बेलों पर, पौधे पर और जमीन के नीचे एटले के वेला पर, छोड़ पर और जमीन अंदर कई शाकभाजी हशे एनुं तमारे निदान करवानुं छे। एटले के तमारे जोवानुं छे। पछी पाकनी अंदर ध्यानथी जोवानुं कई शाकभाजी अहींया वेला पर, छोड़ पर और जमीननी अंदर होय छे। हवे प्रश्न पेज नंबर 68 प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। तो शू छे? आज शब्दों आपेला छे ने कया शब्दों कहेवाय? विरुद्धार्थी शब्दों। एनुं वाक्य प्रयोग आपेलुं छे एकनुं, बीजानुं वाक्य प्रयोग आपणे स्वाध्यायपोथीमां बतावीशुं। तो प्रशंसा, अधूरा, पसंद, भलाई और शान।
એ વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો છે। ધારો કે ઉદાહરણ આપેલું છે પ્રશંસા, એટલે એ શું થાય એનો વિરોધી? નિંદા। આપણે કોઈની પ્રશંસા કરીએ તો બીજી રીતે નિંદા કરતા હોઈએ છીએ। તો બે વાક્ય આપેલા છે, જુઓ। अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंसा होती है, तो सारा જે કાર્યો કરતો હોય એની હંમેશા બધા લોકો શું કરે છે? પ્રશંસા। बुरे कार्य करने वालों की निंदा होती है, तो જે ખરાબ કાર્યો કરે એની શું કરીએ છીએ? નિંદા। તો એ રીતે જુઓ, અધૂરા એટલે પૂરા, પસંદ એટલે નાપસંદ, ભલાઈ એટલે બુરાઈ, અશાંત એટલે અશાંત। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। तो જે શબ્દો આપેલા છે કયા છે? સમાનાર્થી। સુગંધ, આરોગ્ય, મન ભાવન, સરતા, જોર, બહુત। આ જે શબ્દો આપેલા છે એનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો અને એક અર્થ આપવાનો છે। તો અહીંયા એક આપેલો છે, બાકીના શબ્દો સ્વાપોથીમાં જોઈશું। સુગંધ એટલે શું થાય એનો સમાનાર્થી બીજો અર્થ? સમાનાર્થી એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો સમાન અર્થ, એના જેવો બીજો ઉચ્ચાર અર્થ મળતો હોય એવો અર્થ આપણે શોધવાનો। અને વિરુદ્ધાર્થીમાં જે શબ્દ આપેલો હોય એનો વિરોધ અર્થ બતાવતો હોય એટલે કે વિરુદ્ધાર્થી। ફૂલો की सुगंध सबको अच्छी लगती है, तो ફૂલોની સુગંધ બધાને સારી લાગે છે। બીજું છે ફૂલો की सुवास सबको अच्छी लगती है, તો એના જેવું થયું ને, ફૂલો की सुवास બધાને સારી લાગે છે એટલે કે સમાનાર્થી। હવે આવશે ભાષા સજ્જતા, એટલે ભાષા સજ્જતામાં શું આવશે? વિશેષણ શીખવાનું છે, બરાબર। તો પહેલાં આપણે વિશેષણની व्याख्या विषे जोईशुं कि विशेषण एटले शुं थाय। तो जुओ, संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। એટલે અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? એડજેક્ટિવ। સંજ્ઞા એટલે જો અહીંયા બે ભાગ આપેલા છે, ક અને ખ। કમાં જે વાક્યો આપેલા છે એની નીચે અંડરલાઈન લીટી કરેલી છે, બધી શું છે? સંજ્ઞાઓ। અને ખમાં જે વાક્યો આપ્યા છે એની નીચે અંડરલાઈન કરેલ છે એ બધે શું છે? વિશેષણ। એટલે જે સંજ્ઞાઓ અહીંયા નામના અર્થમાં વધારો કરતા હોય એને શું કહેવાય? વિશેષણ। એટલે કે જે સંજ્ઞા હોય એની વિશેષતા બતાવતું હોય। ધારો કે આપણે અહીંયા ધ્યાનથી જોઈએ, મનોજને ગાજર ખાયા, તો મનોજને બડા ગાજર ખાયા, તો ગાજર કેવું? મોટું, એ શું થયું? સંજ્ઞા। 2, टोकरी में शकरकंद है, तो टोकरी में मीठा शकरकंद है, केवुं शक्करियुं केवुं? मीठुं। तो शकरकंद संज्ञा और मीठा विशेषण है। तो घोड़ा दौड़ता है, तो काला घोड़ा दौड़ता है, शू छे? घोड़ो पण केवो? कारो, એટલે घोड़ा संज्ञा અને काला एनु शू छे? विशेषण। गाय चरती है, तो गाय संज्ञा छे, तो सफेद गाय चरती है, सफेदना नीचे લીટી છે, तो शू थयुं? गायनो विशेषण। लड़के पढ़ते हैं, तो लड़के शू छे? लड़के नीचे अंडरलाइन छे, शू कहेवाय? संज्ञा। सामे छे 3 लड़के पढ़ते हैं, तो કેટલા છોકરાઓનો ઉલ્લેખ થયો છે? 3, તો 3ના નીચે અંડરલાઈન છે એટલે શું કહેવાય? વિશેષણ। गिलास में दूध है, तो ग्लासમાં दूध છે, दूध એ સંજ્ઞા છે, તો અહીંયા गिलास में थोड़ा दूध है, તો ગ્લાસમાં કેટલું દૂધ છે? થોડું, વધારે નહીં પણ થોડું, એટલે થોડું એ દૂધનું શું છે? વિશેષણ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને સંજ્ઞા અને વિશેષણમાં ખબર પડી ગઈ? સરસ। नीचे जो आप जानते हैं कि विभाग क के वाक्य को निर्देशित शब्द गाजर, शकरकंद, घोड़ा, गाय, लड़के और दूध ये सभी संज्ञाएं हैं। तो इन संज्ञाओं की विशेषता बताने क्रमशः बड़ा, मीठा, काला, सफ़ेद, 3 और थोड़ा, ये क्या है? ये विशेषण है। पेज नंबर 69। तो अहींया जो विद्यार्थी मित्रों शुं आपेल छे? चित्र आपेल छे, एमां क्रिया पढ़िए और समझिए। आ बधा शुं करे छे? बधी क्रियाओं करे छे, ए तमारे वांचवानुं छे अने समझवानुं छे। तो जुओ, अहींया ऊपर दिए गए वाक्य में पढ़ती है, दौड़ती है, खेलता है आदि शब्द क्रियाओं का निर्देश करते हैं। शुं छे आ बधी क्रियाओ? धारो के आपणे जोईए, मयूरी पढ़ती है, तो मयूरी वांचे छे। मीना दौड़ती है, तो मीना शुं करे छे? दौड़वानुं काम करे छे। सोनल खाना खाती है, तो सोनल शुं करे छे? खावानुं खाय छे એટલે કે જમે છે। सचिन खेलता है, तो सचिन रमे छे। सलीम पानी पीता है, तो सलीम पानी पीए छे। जोसेफ लिखता है, तो जोसेफ लखे छे। तो आ बधा छोकराओ शुं करे छे? पोतपोतानी क्रियाओ कई कई? वांचवानी, दौड़वानी, खावानी, रमवानी, पीवानी अने लखवानी। तो शुं थई? बधी क्रियाओ। तो जो क्रिया बताने वाले पद को शू कहते हैं? क्रियापद।
तो तमारी बुक में आपेलू छे जो पद किसी कार्य के करने या होने को बोध करवाए वह क्रिया एटले के वर्ब कहलाता है। इंग्लिश में आपणे शुं कहीए छे वर्ब ने हिंदी में ने गुजराती में शुं कहेवाय ने क्रिया। जो पद किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाए उसे क्रिया कहलाता है। हवे विद्यार्थी मित्रों एनी नीचे छे इतना जानिए शुं छे इतना जानिए के तमारे आटલું तो खास जाणवानुं छे ध्यानथी सांभळो। ए अहींया शाकभाजीना नाम छे हिंदी अने गुजराती आपेलुं छे। आलू एटले बटाका, शकरकंद एटले शक्करिયું, करेला एटले कारेલું, लौकी एटले दूधी, मटर एटले वटाणा, गाजर एटले गाजर, बंदगोभी एटले कोबीज, मिर्च एटले मरचुं, भींडी एटले भींडो बराबर, टामाटा एटले टामेटું, बैंगन एटले રીંગણ, शलगम एटले बीट, ककड़ी एटले काकड़ी, फूलगोभी एटले फूलेवर, धनिया एटले धाणा और अदरक एटले आदू। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे आटले सुधी भाग 2 में जोई लीधुं। हवे अहींया पाठ 9 पूरो थयो। बधा विद्यार्थी मित्रों ने धन्यवाद। चलिए थयो।